and Namaskar. I'm Bhaskar and I'm back with another edition of Have Your Say Club presents the Tete. Hope all of you are safe and had a very pleasant and happy and safe Diwali. By the way, belated happy Diwali to all of you from the entire HYS family. Well, I just talked about having a healthy Diwali or Diwali. Talking about health, as we know that these are pandemic times and everyone is talking about health, health, immunity. Actually, it's quite tough to remain healthy because we don't have the time to spare for our health and fitness, isn't it? Or more so, we don't want to take time out to keep ourselves healthy and fit. We just don't want it. We become lazy at times. But our today's guest is different from most of us because, in spite of being a very busy banker, he spares a lot of time for his health and fitness. Today, we are going to talk with a very esteemed member of our club who is also a fitness fanatic, by the way. And we'll talk more about it. But before that, let me share my screen and welcome Rajveer Bhai. Hi Rajveer Bhai, how are you? Hi Bhaskar, thank you. Yeah. I'm fine. कैसे हैं राजवीर भाई आप? मैं I'm एकदम मस्त. absolutely fine, fit and fine. First of all, thank you so much for sparing time for talking to us. Right? Thanks, yeah. It's my pleasure. Pleasure is all ours. तो मेरा first question आपसे बड़ा basic सा है. A bit about yourself. Tell us a bit about yourself, the place where you belong to, the education, the work that you do. Okay, basically I belong to Ajmer. I'm born and brought up from Ajmer only. In 2015, I moved to Jaipur. Like when I got selected in the banking industry, then I moved to Jaipur. Earlier I was like working in Ajmer only. Like my parents, they were also like working in Ajmer. We are 4 siblings. I'm married also. My wife, she's right now she's housewife. I have 2 kids. One is daughter, one is boy. So like it's a small family and it's a happy family, and the main thing is that all are concerned about their fitness also. Like my wife, she's also very she's very concerned about her fitness also. So it's a good thing. My daughter also, she has her separate Instagram page, Facebook page where she uploads her videos of this fitness, yoga. She does yoga a lot. My boy also, he's only 4 years old, but sometimes he also does some same things like fitness related thing. He do exercise, many things. So I'm happy that all are involved in this thing. Great. About your education and your work. Okay, like I completed my graduation from Ajmer only in 2003. Like I did my BCom, and after that I did distance learning, like MBA distance learning. It was done through SCDL Pune. I did it like I was working with a broker only in Ajmer. At that time, like part time, I did that MBA from Symbiosis Pune. So I started my career in 2003 only. After finishing my BCom, I started my career. Yeah. So from broking to banking, how did this happen? Actually, I started my career with broking only, stock broking. Earlier, I started with a local broker. There was a local broker in Ajmer. There I started. And there I worked approx 3.5 years. Then I moved to Religate Securities. At that time, I joined in Jaipur. Jaipur in 2007. So from 2007 to 2008, I was working in Jaipur only. Then I was promoted as a branch manager and moved to Ajmer. It was my native place also, and they required some person who can take over that charge over there. So they promoted me and they sent me to Ajmer. There I worked for near 6.5 years. So I completed almost 8 years in Religare Securities. तो जब आप क्या होता है एक ही फील्ड में इतने साल तक होते हैं ना, तो आप कुछ समय बाद पक जाते हो. मतलब वही घर और घर से ऑफिस में वही चेहरे, वही कस्टमर, सुबह शाम का वो स्टॉक्स का ऊपर नीचे होना और वो सारी चीजें, तो आप एक लेवल के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हो. फिर सीखने के लिए एक स्टॉक ब्रोकिंग में लिमिटेशंस हैं. अब जो स्टॉक ब्रोकिंग है वो तो काफी चेंज हो चुका है. उसमें यू हैव टू सेल मेनी प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स.
like mutual fund also, health insurance, general insurance, life insurance. There are so many products, but at that time there were only few products. तो मैं fed up हो चुका था, मैंने कहा यार ये बहुत हो गया, it's time to change. Luckily I got a call from ICICI Bank and I got selected in ICICI Bank. तो वो जो change का जो था ना, क्योंकि in my entire career 2013 to 2003 to 2020, approx 17 years, I changed only 2 company, from local broker to Religare and Religare to ICICI Bank. So luckily I got selected in ICICI Bank and then started my banking career. तो बैंकिंग में सीखने को बहुत कुछ मिला मुझे, जो मुझे चाहिए था अपने आप को ग्रूम करने के लिए, कि आप कितना सीख सकते हो. जयपुर, मेरे को जयपुर मिला तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, कि when you like move from smaller place to a capital, definitely you will get more space. आपको सीखने के बहुत कुछ मिलेगा. There are many things in banking industry. There are so many things which you can learn. पहली बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत चेंज थी. पहले तो मतलब नॉर्मल से हुआ था कि 10 से 5 वाली जॉब है, 10 से 2 बजे तक तो बैंक बंद हो जाते थे, हाथ से सारे काम होते थे, कंप्यूटर पे भी हुआ नहीं करता था. तो वो चेंज हो गया. पहले तो मतलब अगर ब्रांच मैनेजर अगर किसी बैंक का है तो ही वाज जस्ट लाइक आईएएस ऑफिसर, मतलब आप कैशियर ही बड़ी बात होती थी. ये एक्चुअल में मतलब 20 साल पुराने बैंकर्स को अगर आप बात करोगे तो वो बताएंगे कि यार पहले बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट थी. बाद में प्राइवेट बैंकर्स आ गए, प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री आ गई, तो उन्होंने पूरा चेंज कर दिया. अब सर्विस ओरिएंटेड हो गया सब कुछ. तो जो पहले था अब उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया. सीखने का बहुत कुछ है. you have so many products, you can learn a lot of things nowadays. So it's better, like I'm fortunate that I'm working with such a big brand in banking industry. So I'm happy that I'm working with ICICI Bank. This actually gives me an idea to possibly do another talk show with you where we talk about banking and other financial things, that is specifically the investment part of it. So we can definitely do that. But then very interestingly, मैं भी अजमेर से ही हूँ, right? I came to know day before yesterday only. Yes. So you are also from Ajmer. Exactly. तो ये मेरा जो question है, this is going to be very interesting for me, क्योंकि I miss Ajmer a lot and there are certain reasons. तो आप मुझे अपने reasons बताओ पहले. आप अजमेर को मिस करते हो क्या और क्यों करते हो? Then फिर मैं देखता हूँ आपके और मेरे reasons same है या नहीं है. क्या होता है भास्कर भाई, बच्चे अपनी माँ से जुदा हो जाए ना, 10 साल तक भी नहीं मिले, तब भी वो कनेक्शन, वो प्यार हमेशा रहेगा. ओहो, क्या वो बात कभी कही है. छूट नहीं सकता. तो वो जो आपका जहाँ बॉर्न एंड बॉटअप है ना, ठीक है, उससे आपका नाता ऐसा होता है कि आप उसको कभी नहीं भूल सकते हो. मेरे को जयपुर में 20 साल भी हो जाएंगे ना, या मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा, मेरे को 50 साल भी हो जाएंगे ना, तब भी अपना शहर अपना ही होता है. ठीक है. अभी भी जब मैं जाता हूँ, मैं महीने 1-2 महीने में अजमेर, तो वहां जाके जो फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत अपनापन वाली जो फीलिंग होती है. तो उसके बहुत सारे रीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर्स, like approx 70% of my relatives they live in Ajmer only. तो वो जो है, वो जो घर है, परिवार है आपका, वो सब अजमेर है मेरा. तो आई मिस देम अ लॉट. मैं स्टार्टिंग में जब मैं जयपुर शिफ्ट हुआ था तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी. ऐसा बोलते हैं कि बाप को बेटी से ज्यादा प्यार होता है और माँ को बेटे से, तो वो एक्चुअल में है. तो मैं अपनी बेटी को बहुत मिस करता था क्योंकि वो बहुत छोटी थी वो. तो वो, लेकिन अब क्या होता है, जब आपको लाइफ में आगे बढ़ना होता है या फिर चेंज चाहिए होता है, तो आपको कुछ एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. तो वो सेक्रीफाइस किए थे मैंने, कि मैं अकेला रहता था उस वक्त स्टार्टिंग में अजमेर. देन मेरी वाइफ और बच्चे शिफ्ट हो गए लेटर ऑन. अभी मेरे पेरेंट्स दे आर लिविंग इन अजमेर ओनली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मिस माय पेरेंट्स अ लॉट. सेकंड, लाइक आई बोर्न एंड बॉट अप फ्रॉम अजमेर ओनली. तो मेरी स्कूलिंग, कॉलेज सब अजमेर से हुआ. तो जो मेरे दोस्त भी है ना, वो भी सब बचपन से हैं, मतलब नर्सरी क्लास से मेरे दोस्त हैं. तो वो सब वहीं पर हैं. अब अजमेर से आपको पता है, अजमेर में क्या सब कुछ छोटा है, मतलब सब कुछ पास पास है. तो इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स और 15 मिनट्स. मतलब आप एक कार में एक सॉन्ग लगाओगे, सॉन्ग खत्म होने से पहले आप पहुंच जाते हो. अजमेर में ऐसा है. एकदम सही, एकदम सही. तो वो जयपुर में ऐसा नहीं है, वो अजमेर में ऐसा बहुत है. तो वो जो गलियां है, जो दोस्त हैं, अजमेर को आप पता है कि कड़ी कचौरी बहुत फेमस है. ओहो, क्या बात है. मतलब ये तो सेम वाला रीजन हो गया. क्या बात है, वाह वाह वाह. पुष्कर के मालपुए, मतलब कॉलेज के दिनों में पुष्कर बहुत जाते थे. बिल्कुल. पुष्कर बहुत अच्छा मतलब हब हुआ था हमारे लिए, कि यार चलो घूमने के लिए पुष्कर चले.
तो वो चीज आप कभी भूल नहीं सकते हो। आप 70-80 साल की भी हो जाओगे ना, तब भी आपको वो चीजें ही याद रहेगी हमेशा। तो मैं दिमाग में हमेशा रहता है, मैं हमेशा उन चीजों को मिस करता हूँ। नहीं, मैं एग्जैक्टली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कब आप कड़ी कचौरी के बारे में बोलोगे जो नया बाजार में मिलती है, और कब आप पुष्कर के मालपुओं के बारे में बात करोगे। तो वो आपने कर लिया, अब अपनी दोस्ती पक्की है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अजमेर होऊंगा और आप भी अजमेर हो, तो अपन साथ में खाने जरूर चलेंगे, बड़ा मजा आता है। जरूर जरूर भाई, वैसा मतलब वैसा अजमेर के लिए तो वैसा टेस्ट फेमस कहीं है। नहीं मिलता। एग्जैक्टली, कहीं नहीं है, कहीं एग्जैक्टली, नहीं है। एग्जैक्टली, 100%। तो मूविंग ऑन, राजवीर भाई, यू बीन अ बैंकर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। या तो बैंकिंग लाइफ, जैसा भी आपने बताया कि इट हैज बिकम, और अभी रिसेंटली काफी टफ हो भी गई है, बैंकर्स हमेशा बिजी ही रहते हैं। तो एक तो ये बिजी लाइफ है अपनी साइड पे, और उसके साथ में आप फिटनेस के लिए बड़े पैशनेट हो। हम आपके वीडियोस देखते हैं, आप डेली पुशअप चैलेंज भी करते हो, आप रनिंग भी करते हो, आप साइकिलिंग भी करते हो, आप स्किपिंग भी करते हो। यस। तो इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद में प्रोफेशनली, ये what is that one thing that motivates you to be fit and to take time out for gymming and fitness regularly? इसका ना जो आंसर है ना, वो ये है कि जब आप आईने के सामने खड़े हो और आप अपने आप को अच्छा महसूस ना करो, तो वो अपने आप वो ज़ील आएगी आपके अंदर। हाँ, तो ये चीजें है ना, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं हो। आपको ये है कि मुझे हमेशा फिट रहना है, हमेशा यंग रहना है। आप ये सोच के चलोगे ना, तो आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना आपको यूट्यूब चैनल्स देखने हैं कि फिटनेस के लिए क्या करें, आपको सब कुछ पता है। आप सिर्फ गाइडेंस की आपको थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी, बाकी सबको पता है। लाइक आई आई टॉक टू मैनी पर्सन, मैं उनको पूछता हूँ भाई मॉर्निंग वॉक कैसी है, बोले बहुत बढ़िया, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। लेकिन लोग करते नहीं है। पता सही है बात कि है। मॉर्निंग वॉक अच्छी है, लेकिन यस। नोबडी डू इट दैट थिंग। तो जब आपको पता है आप कर नहीं रहे हो, तो फॉल्ट तो हम में ही है। अब मैं बताऊँ, बैंकिंग इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रोफेशन हो, स्ट्रेस हर जगह है। अब स्ट्रेस को दूर करने के कुछ एक तरीके हैं। या तो आप स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दो, आप ड्रिंकिंग करना स्टार्ट करो। काफी आप देखोगे जो बिल्कुल प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो ना चाहते हुए भी इन चीजों में चले जाते हैं। ट्रू। एक जो रास्ता है वो है कि फिटनेस, वो मैंने उस चीज को अपनाया था, फिटनेस को। जैसे बचपन से मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरे फादर वो मॉर्निंग वॉक, बहुत लंबी लंबी मॉर्निंग वॉक करते थे। बजरंगगढ़ जैसे अजमेर में बजरंगगढ़ बहुत जाते थे। तो वो चीज मैंने बचपन से देखी है। बचपन में मैं पतला हुआ करता था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि शायद 11th या 10th के अंदर मेरा वेट जो 35 kg था। तो आई वॉज अंडर वेट। मतलब 10th के अंदर जब प्रेयर लाइन होती है मॉर्निंग में, उस वक्त मैं आगे से सेकंड नंबर पे खड़ा होता था। मेरी हाइट बहुत कम हुआ करती थी उस वक्त। और जब 10th खत्म हुआ था, तो मैं पीछे से सेकंड नंबर पे खड़ा होता था। तो मेरी हाइट तो बहुत बढ़ गई थी, वेट नहीं बढ़ा था उस वक्त। कॉलेज तक भी मैं ऐसे ही था। फिर कॉलेज के बाद जैसे आप जब प्रोफेशन लाइफ में जाते हो या लोगों से मिलना स्टार्ट करते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि आपको लगता है कि मुझे प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आपकी अंदर की नॉलेज, आपका अंदर का मतलब जो अच्छाई है, वो तब पता चलेगी लोग आपसे रेगुलर मिलेंगे। लेकिन आप पहली बार किसी मिलते हो तो आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। राइट। मैं ये नहीं कह रहा आपके सिक्स पैक्स होने चाहिए, लेकिन आप ट्रू। फिट होने चाहिए। तो आप वो होगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे में तब से आया था, मतलब 2003 से मैं फिटनेस के लिए हूँ। मैं स्टार्टिंग में वर्कआउट, मतलब हैवी वर्कआउट करता था। तो उस वक्त मुझे लगता कि मुझे बॉडी अच्छी बनानी चाहिए, डोले शोले जैसे सलमान सही खान और बात ये। है। उस वक्त वो क्रेज था। धीरे धीरे वो क्रेज तो चल ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो चेंज हो गया। वो इसलिए चेंज हुआ, जैसे मैं एक बार कहीं गया था किसी कॉल पे मीटिंग में, तो कुछ एक सीढ़ियाँ चढ़ी थी मैंने, तो वो ना सांस फूलने लग गई थी। तब मुझे अच्छा। एहसास हुआ कि यार ये स्ट्रेंथ तो ठीक है, लेकिन बंदे में स्टैमिना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्ट्रेंथ के साथ स्टैमिना होना चाहिए आपका। तब मैंने ये रनिंग करना, ठीक है, साइकिलिंग करना, ये सब चीजें स्टार्ट करी थी। तो आपको स्ट्रेस को, मतलब स्ट्रेस को दूर करना है, तो सबसे अच्छी चीज है फिटनेस। आप कुछ भी करो, फिटनेस ये नहीं कि आप डंबल उठा के स्टार्ट हो जाए, नहीं। आप मॉर्निंग वॉक कर लो, आप रनिंग कर लो, आप साइकिलिंग कर लो, स्किपिंग कर लो। आप कुछ नहीं है तो आप मीटिंग से कॉल्स पे जाती हूँ तो लिफ्ट को छोड़ के आप सीढ़ियाँ चढ़ो। तो बहुत तरीके हैं, और मैं कह रहा हूँ आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। आप जैसे मैं जो जिम जाता हूँ, मैं इवनिंग में जाता हूँ। मैं बैंक से आने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद मैं फिर जिम जाता हूँ, और मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। अपने जितनी फ्रस्ट्रेशन है ना, मैं जिम में निकाल के आता हूँ। तो ये अच्छा, हाँ करना बिल्कुल। चाहिए।
तो ये एक अलग से तरीका है अपने आप को कि अपने आप को रिलैक्स रखने का। वरना देखो, और मैं सोता भी बहुत हूँ, मैं तकरीबन 8 से 9 घंटे सोता हूँ। वो नींद भी आपको अच्छी आएगी अगर आप वर्कआउट वगैरह करोगे, तो नींद भी अच्छी आएगी। अभी आप काफी लोगों को देखोगे वो टेंशन के मारे सो ही नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन आप वर्कआउट करो, आपको टेंशन भी कम होगी, आप रिलैक्स रहोगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप रिलैक्सेशन के लिए आप वर्कआउट करो। वर्कआउट के बहुत सारे फॉर्म्स है, आप कोई भी चूज करो, लेकिन करो। लोग राइट। टेनिस खेलते हैं, हाँ, आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग, बट स्टार्ट समथिंग। कुछ ना कुछ स्टार्ट करो जो आपके डेली होना चाहिए। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, जिंदगी भर खाना खाएंगे, वैसे मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है और जिंदगी भर करनी है। ऐसे नहीं कि साल 2 साल करा, स्टेरॉइड लिया। बहुत लोग स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, ये सब बिल्कुल। गलत है, ये शॉर्टकट है, आपकी बॉडी खराब होगी। मैंने कभी स्टेरॉइड्स नहीं ली, ना ही मैं लूंगा। आप प्रोटीन ले सकते हो, देयर आर अदर सप्लीमेंट्स जो कि हार्मफुल नहीं होते, जो नॉर्मल, जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, आप वो ले सकते हो। या नेचुरल, तो मैं ज्यादातर नेचुरली प्रेफर करता हूँ कि मैं जितना हो Okay. सकता है नेचुरल रहूँ। That's a nice message actually. जो भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, आई थिंक दिस इज अ गुड टिप। फिटनेस को हम हमेशा कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं, तो जस्ट कीप इट सिंपल एंड स्टार्ट स्मॉल। कोई बड़े गोल्स मत रखिए, एंड स्टार्ट स्मॉल सो दैट यू कैन अचीव इट। और जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी और इच्छा होती जाए, यू कैन एड या ऑन टू योर ग्रेजुअली एक्टिविटीज, यू है इंक्रीज ना? इट। राइट, राइट, राइट। ऑसम, ऑसम। एक्चुअली ना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था कि हाउ वुड यू डिफाइन फिटनेस, बट आपने अपने पिछले वाले आंसर में ही डिफाइन कर दिया हाँ, कि भावनाओं फिटनेस में बह गया मैं। क्या है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो अजमेर वाले बात कर रहे हैं ना, तो बह ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई 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 ऐसा इशू नहीं है। मुझे ना राजगीर भाई आपसे बात करके ना बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ कॉन्वर्सेशन ना एकदम चलती जाए, लेकिन क्योंकि थैंक यू यार। वी नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन, एज आई सेड अर्लियर। बट देन मेरे को एक्चुअली बहुत मजा आ रहा है। और हमारे पास एक्चुअली कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम है, आपको तो पता या ही है। तो आई वुड जस्ट आस्क यू, हमने बैंकिंग के बारे में बात करी, हमने फैमिली के बारे में बात करी, अजमेर जयपुर कैसे आप आए, सारी बातें करी। you've lived a life which has been full of experiences. तो यस, कुछ आप मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, या कुछ मतलब एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? देखो आजकल की जो लाइफ है ना, उसमें टेंशन बहुत है। मैं मतलब मेरी बेटी 4th स्टैंडर्ड में, उसको भी बहुत सारी टेंशन है कि पढ़ाई प्रॉपरली हो उसके। जैसे अभी वो अजमेर है, तो उसकी बुक्स छूट गई थी जयपुर में, तो उसको इस चीज की टेंशन है कि बुक्स मेरे टाइम से आ जाएं। तो छोटे से बच्चे से लेकर जो 70-80 साल के ना, उसको भी टेंशन है कि मेरे बेटा लायक है या नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी संभाल लेगा नहीं लेगा। तो ये जिंदगी भर चलती रहेगी, और ये सबके साथ होता है। ट्रू। इसको दूर करने का ना सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रख लो। बिजी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को फिटनेस ओरिएंटेड बनाओ। लोग बोलते हैं कि हमने पैसा कमा लिया है। अगर आप बीमार हो तो आप उस पैसे को क्या एंजॉय करोगे? यू विल नेवर एंजॉय दैट थिंग। तो पैसा है, बहुत अच्छी है। वो एक कहावत है हिंदी में, पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आप फिट ही नहीं हो, अगर आपकी राइट। बॉडी में कुछ है ही नहीं, आप बीमार रहते हो या कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉब्लम रहती है, तो आप लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो फिटनेस नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। वो क्यों? राइट। अगर आप फिट रहोगे तो इट इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर यू बट फॉर योर फैमिली ऑल्सो। पेंडेमिक में देखो आप, मैं अभी कल परसों न्यूज देख रहा था कि दिल्ली के अंदर यंगस्टर्स, हम पहले देख रहे थे कि जो एज में है काफी या जिनको कुछ प्रॉब्लम है उनकी डेथ हो रही है। अभी दिल्ली के अंदर जो यंग लोग हैं उनकी डेथ हो रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं, they are into smoking, they are into drinking, they are not looking after their health. वो खुद का तो नुकसान कर ही रहे हैं, वो अपनी फैमिली का भी नुकसान कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कभी किसी को कुछ हो जाए, तो आप सोचो आपकी फैमिली पे क्या बीतेगा। तो आप इसलिए भी फिट रहो कि आप अपने लिए फिट रह रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए भी फिट रहे हो। आप फिट हो तो आप तो अच्छे हो ही, आपकी फैमिली भी अच्छी रहेगी जिंदगी भर। तो आप उनके लिए जिंदगी भर कमाना चाहते हो, उनकी जिंदगी भर उनके साथ रहना चाहते हो, तो आपको फिट रहना पड़ेगा। तो इसको वैसे लो, इसको कोई लोड नहीं लेने की जरूरत नहीं है, बट यू विल हैव टू बी फिट फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स फॉर एवर। जैसे हम खाना डेली खाते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट थिंग, जैसा हम खाना डेली खाते हैं, सांस
दिन भर सांस लेते हैं, वैसे ही हमें फिटनेस ओरिएंटेड होना चाहिए. आई वॉज जस्ट टॉकिंग विद इट अबाउट दैट थिंग कि जैसे मैं अभी अजमेर था ऑन दिवाली, तो आई वेंट टू माई रिलेटिव. मैं सब रिलेटिव के घर पे मोस्टली मैं पैदल पैदल गया. I didn't take my car, I didn't take my two-wheeler. I went alone, I went like walking only. I started walking. तो आप बहाना ढूंढो कि मैं क्या करूं, कि मैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूं. आप लिफ्ट अवॉइड करके आप स्टार्ट यूजिंग स्टेयर्स. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो ये मेरा सबको कहना है कि लाइफ के अंदर अपनी फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ताकि फिट रहोगे आप तो सब कुछ अच्छा रहेगा आपकी लाइफ के अंदर. ट्रू, वेरी नाइस मैसेज एक्चुअली. मतलब इससे मैं खुद भी फिट रहूंगा और एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा फिट होगा, बिकॉज पोल्यूशन नहीं होगा ना. जैसा आपने जो एग्जांपल दिया, कार ना ले जाके पैदल चलेंगे तो हाँ, इंसान को ना केवल फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस. और आप ये नोटिस करोगे, इफ यू आर फिजिकली फिट, होता है ना, बहुत बार हम कपड़े ढंग के पहनते हैं, फिटिंग के कपड़े, तो हमें कॉन्फिडेंस अपने आप आता है. बिल्कुल सही और बात. कपड़े अगर हमारे साइज के नहीं हो तो हमें कॉन्फिडेंस लो आता है. अगर आप फिट रहोगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ता है. ठीक है, तो ये फिट रहने के बहुत सारे फायदे हैं. फिट रहने से मैं ये नहीं कर रहा आप सलमान खान की तरह या जॉन अब्राहम की तरह सिक्स पैक है या बॉडी बनाओ. फिट मतलब फिट. अनिल कपूर से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ. तो अनिल कपूर वो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, लेकिन ही नेवर फील्स कि वो सीनियर सिटीजन है. ही फील्स ही इज यंग. वो उनको लगता है कि वो यंग है, इसलिए वो देखना, इसलिए यंग रहते हैं. तो जब तक आप फील करोगे ना कि चीज को, आप जब खाना खाते हैं ना अपन, तो आप चम्मच की जगह हाथ से खाना, चावल या कुछ भी चीज हो, आपको स्वाद हाथ से खाने में ज्यादा आएगा. तो जो फीलिंग्स होती है ना, बिल्कुल, वो जो फीलिंग्स होती ना, जब तक वो आप में फीलिंग नहीं रहेगी कि यार मैं फिट क्यों रहूं, मैं तो ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं. आप जिस दिन वो फिट होना है, जब आप 100 लोगों के बीच में जाओगे ना और आपको लगे मैं फिट हूँ, तो आप वैसे अच्छा लगेगा कि यार चलो यार मैं फिट हूँ, मेरा टमी बार नहीं है, या मेरी डबल चिन नहीं है. छोटी छोटी चीजें है ना, ये बात आपको बूस्ट अप देती है. तो लाइफ में फिटनेस के ऊपर मेरा तो बहुत ध्यान है. और ना केवल मेरी वाइफ का. बोथ ऑफ माय किड दे लाइक सिजेरियन से हुए थे दोनों. तो मेरी वाइफ ने बहुत पुट ऑन किया था. शी वाज अबाउट 70 kg 75 kg. तो उसने शी रिड्यूस्ड अ लॉट, बहुत रिड्यूस करा उसने. करंटली शी इज अराउंड 56 ओनली. तो अगर मैं अपना डेडिकेशन 80-90% मानता हूँ फिटनेस के लिए, तो उसका डेडिकेशन 200% है. उसने इतना अपने आप को चेंज करा है. तो ये एटमॉस्फेयर आपको अपने घर में क्रिएट करना पड़ेगा. तो जो मेरी वाइफ पहले चिल्लाती थी मुझ पे कि यार आप तो शाम को आते हो फिर जिम चले जाते हो, हाँ, तो आप तो बोलते थक जाते हो, तो आप जिम में नहीं थकते क्या? तो जब उसका चस्का चढ़ गया ना उसको, तो वो अब वो बात नहीं करती है. अच्छा. अब वो न्यूट्रिशन का कोर्स कर रही है. शी इज इनटू फिटनेस ओनली. शी वांट्स टू मेक अ करियर इन फिटनेस नाउ. तो अच्छा है. तो पीपल आर चेंजिंग. तो लाइफ में मेरा सबको ये कहना है कि फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दें. परफेक्ट. और जब भी मौका मिले तो वाइफ की थोड़ी सी तारीफ कर दो, है ना, उससे और ज्यादा खुशी मिलती है. उससे घर में अच्छा माहौल रहेगा. क्या बात है, वाह. शादीशुदा इंसान ये बातें समझ सकते हैं. तो जितने भी शादीशुदा लोग हैं इस बात को समझ लीजिए और वाइफ की तारीफ करना शुरू कर दीजिए. थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करिए. जैसे फिटनेस थोड़ा सा आप स्टार्ट कर सकते भी है. वो हकदार है चीज. That's true. I mean seriously, that's actually a nice message. राजीव भाई, मुझे आपसे बात करके, जैसे मैं पहले भी 1000 बार बोल ही चुका हूँ, कि बहुत मजा आया. और ये आइडिया मेरे को ना बिल्कुल अभी आया है, बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम अजमेर. So we will give some trivia about Ajmer to our viewers and also ask a question. But before that, आज की जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी ना, उससे मैंने कुछ चीजें जो सीखी हैं, ठीक है ना, और कुछ चीजें जो मेरे को रिकॉल हो गई हैं. पहली चीज तो, if anyone is visiting Ajmer, do go to Naya Bazaar and have kadi kachori over there, because that is the only place where you will get that particular taste. और वो बहुत कमाल होता है. जैसे है ना, जैसे अपन वैष्णो देवी जाते हैं तो बोलते हैं कि वैष्णो देवी गए और आप भैरव धाम नहीं गए तो वैष्णो देवी आना बेकार है. वैसे अगर अजमेर आए और कड़ी कचौरी नहीं खाई, तो फिर आपका अजमेर आना बेकार है. और पुष्कर जाके आप भले मंदिर में दर्शन मत करना, लेकिन मालपुए खाओ. मंदिर में दर्शन अपन अगली बार कर लेंगे, लेकिन मालपुए खाना बहुत जरूरी है.
तो ये तो एक चीज है जो पक्की हमें करनी है. Second, and a very good thing that I actually got to know, or probably I would say, मुझे कहीं ना कहीं पता था, but then it actually got recalled, was fitness बड़ी simple चीज है. Don't try and make it complex. Yes. Set small goals. You can, start by a simple walk, and then gradually, you can start walking 500 meters a day. That's also enough if you don't walk, and then you can add on. So make small goals, achieve them, and then keep making them bigger, right? And as I was saying, the trivia question. So Rajveer bhai, you would be aware of Ana Sagar in Ajmer, Yes, right? yes, yes, yes. You know? So my trivia is that in Ajmer we've got a lake with a name called Ana Sagar, Yes, and associated with it is a garden called Daulat Bagh, yes, right? And yes. on the shore of that lake there are 3 gates which are called as Khamakha ke teen darwaze, right? And वो actually Khamakha के ही हैं. Question is, वो खामखा के 3 दरवाजे किसने बनवाए थे? Now if you know the answer, please comment below and let us know. We will be coming back next week with another yet interesting tete-a-tete with another yet interesting member of our club. Till then, stay happy, stay safe, keep your fitness goals up. Bye-bye. Thank you, Bhaskar.